Hi students, I am GVN Mr. Kanayala Nagar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare in this class for BSc Agriculture 6 and my subject post-harvest management and validation of fruit and vegetables. Student, I am discuss about concept, standard fermentation and non-fermented beverage. Now start fruit beverage. Fruit beverages are easily digestible, high pricing, thirst quenching, appetizing and nutritional for superior to many synthetics and aerated drinks. They can be classified into unfermented and fermented beverage. First, अनफर्मेंटेड बेवरेज. जो अनफर्मेंटेड बेवरेज होता है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है नेचुरल एंड स्वीटनेस जूस, RTS, नेक्टर्स, कोडियल, स्क्वैश, क्रश, सिरप्स, स्वीट जूस कंसनट्रेट्स एंड फ्रूट जूस पाउडर, barley waters and carbonate beverage are also included in this groups. फर्स्ट में हम बात करते हैं फ्रूट बेवरेज. फ्रूट बेवरेज के अंदर हम स्पेस के अंदर बात करेंगे, डिफाइन करते हैं इसको. मीनिंग ऑफ स्क्वैश. दिस इज टाइप ऑफ फ्रूट बेवरेज कंटेनिंग एट लीस्ट 25% of fruit juice or pulp and 40 to 50% total soluble solids. Commercially, it also contains about 1% acids and 350% ppm sulfur dioxide or 600 ppm sodium benzoate. It is diluted before serving. Example: mango, orange and pineapple are used for making squash. Commercially, it can also be prepared from lemon, bell, papaya, etc. using potassium metabisulfides means chemicals as preservative, or from jamun, passion fruits, peach, plum, raspberry, strawberry, grapefruits, etc. with sodium benzoates as preservative. Then flow charts for processing of squash. First start fruits, second washing, next trimming, cutting or grafting, next juice extraction, next straining, next juice measuring, next preparation of syrups. जो प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स होता है इसके अंदर हम शुगर्स की, वाटर की और रेशियो की, जो शुगर, वाटर और एसिड्स की जो रेशियो होता है उसको हम हिट के द्वारा डिजॉल्व करते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेनिंग, नेक्स्ट मिक्सिंग विद जूस, नेक्स्ट एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव. इसके बाद हम प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं 0.6 ग्राम केमियस और 0 ग्राम सोडियम बेंजोएट एसिड्स पर लीटर स्क्वैश. देन bottling and capping with last storage. Second point, ready to serve means RTS. Defined, this is type of fruit beverage which contain at least 10% fruit juice and 10% total soluble solids besides about 0.3% acids. It is not diluted before serving, hence is known as ready to serve RTS. फ्लो चार्ट बेवरेज RTS बेवरेज का. जो फर्स्ट में हम सेलेक्ट करते हैं फ्रूट्स, दिस फ्रूट हैव बीन पल्प जूस. जो फ्रूट्स होता है वह अच्छे से
पल्प वाले होना चाहिए, मतलब जूसी फ्रूट्स होना चाहिए सेलेक्टेड फ्रूट्स के अंदर। इसके अंदर हम बात करते हैं सेकंड में मिक्सिंग विद स्टैंड सिरप सॉल्यूशन। इसके अंदर हम बात करेंगे शुगर प्लस वाटर प्लस एसिड्स हिट जस्ट डिजॉल्व अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट होमोजेनाइजेशन, इसके बाद बॉटलिंग, नेक्स्ट क्राउनिंग कॉर्किंग, फिर नेक्स्ट पास्चराइजेशन। जो पास्चराइजेशन का जो टेम्परेचर होता है अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 25 मिनट्स, देन कूलिंग आफ्टर स्टोरेज। इसके बाद में हम सी पॉइंट में बात करते हैं कॉर्डियल। जो कॉर्डियल होता है ये भी एक बेवरेज फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, जैसे कि इट इज़ द स्पार्कलिंग क्लियर स्वीटनेस फ्रूट जूस फ्रॉम विच पल्प एंड अदर insoluble substance which have been complete removed. It contains at least 20% juice and 30% THCs. It also contains about 1.5% acids and 350% ppm of sulfur dioxides. This is very suitable for blending with wines. Lime and lemon are suitable for making cordial. Flowcharts for processing of cordial. Then first selected fruits, second washing, third cutting into valve, fourth juice extraction, next straining, next addition of preservative chemicals 1 gram per liter juice. नेक्स्ट है स्टोरिंग इन ग्लास कंटेनर फॉर 10 to 15 days फॉर क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिंपोनाइजिंग ऑफ द सस्पेंस सुपरमेंटेंट क्लियर जूस, नेक्स्ट स्ट्रेइंग एंड मेजरिंग, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स, नेक्स्ट है स्ट्रेनिंग। जो स्ट्रेनिंग होता है मिक्सिंग ऑफ जूस विद सिरप। लास्ट में आता है एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। जो प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं लगभग 0.6 kmS पर ग्राम पर लीटर प्रोडक्ट के बेसिस पे। एंड बॉटलिंग के बाद कैपिंग करते हैं, कैपिंग के बाद उसको स्टोर करते हैं इन कूल ड्राई प्लेस में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट नेक्टर। जो नेक्टर होता है उसको हनी के नाम से भी जाना जाता है। This type of fruit beverage contain at least 20% fruit juice per pulp, fruits as pulp, and 15% total soluble solids and also about 0.3% acids. It no dilute before serving. एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कौन कौन से फ्रूट्स हैं, उनके जूस कितना परसेंट जूस ज़रूरी है। मैंगो के अंदर हम 20% जूस होना ज़रूरी है पल्प का, पपाया का 20%, गुआवा का 20%, बेल का भी 20 और जामुन का 20। जो आंवला होता है, जो आंवला का पल्प होता है 20%, लाइम का जो जूस होता है 2%, जिंजर जूस होता है 1%। इसके बाद बात करते हैं हम फॉर प्रिपेयरिंग द एबव एवरेज द टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स एंड टोटल एसिड्स प्रेजेंट इन पल्प या जूस और फर्स्ट डिटरमाइन एंड देन requisites amount of sugars and citric acids dissolved in water are added for adjustment of tastes and acidic. सेकेंड पॉइंट्स जो फर्स्ट था अर्पन नॉन फर्मेंटेड, जो सेकंड है फर्मेंटेड बीवरेज। जो फर्मेंटेड बीवरेज होता है ये अल्कोहल के थ्रू ही प्रिजर्व किया जाता है। इसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है। इसमें फर्स्ट में हम बात करते हैं जो फ्रूट जूस विच हैव द अंडरगो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इंक्लूड वाइन, चैंपिंग, पॉट, चेरी, टोके, मस्केट्स, पेरी, ऑरेंज वाइन, बेरी वाइन, नीरा एंड साइडर। इसके बाद फ्लो चार्ट्स
फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वाइन। जो फ्लो चार्ट्स होता है वाइन प्रोसेसिंग वाइन का, इसमें हम फर्स्ट में जो ग्रेप्स के जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसको यूज करते हैं, सिलेक्टेड फ्रूट्स। सेकंड में रिमूव ऑफ स्टेम्स, इसके बाद क्रशिंग करते हैं बास्केट प्रेस से, इसके बाद फिलिंग करते हैं जार को ऑफ 3 to 4। इसके बाद एडिशन ऑफ शुगर, जो शुगर को ऐड करते हैं मतलब इसमें 20 to 24% TCS। इसके बाद एडजस्टमेंट करती हैं पीएच का, जो 0.6 से 0.8% एसिड होना ज़रूरी है। इसके बाद ये हैं एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, जिसमें केमियस 1.5 ग्राम पर 100 मतलब 10 kg ग्रेप्स के बेसिस पे, एंड केफिंग फॉर एन आवर्स, जो उसको 1 घंटे के लिए रखा जाता है। इसके बाद में हम एडिशन ऑफ वाइन ईस्ट मिलाते हैं, जिसके अंदर हम 20 ml पर 5 kg ग्रेप्स के बेसिस पे यूज करते हैं। इसके बाद फर्मेंटेशन 2 घंटे के लिए उसे मतलब 2 दिन के लिए उसे फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। इसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं, फर्मेंटेशन फॉर 10 डेज। फिर इसके बाद वापस फर्मेंटेशन करते हैं 10 डेज के लिए। इसके बाद रेकिंग करते हैं, रेकिंग मीन्स साइफोनिंग ऑफ क्लियर लिक्विड। इसके बाद फाइनिंग एंड फिल्ट्रेशन, जिसे हम बेंटो नाइट कहते हैं। इसके बाद एग मैच्योरेशन, जो उसका जो मैच्योरेशन 6 to 8 मंथ का माना जाता है। इसके बाद पास्चराइजेशन करते हैं एट द टेम्परेचर 82 डिग्री मतलब 82 डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर 2 मिनट्स के लिए। इसके बाद बॉटलिंग करते हैं। बॉटलिंग के बाद हम क्राउनिंग कॉर्किंग करते हैं। इसके बाद लास्ट में हम पास्चराइजेशन करते हैं 82 डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर इसको 20 मिनट के लिए, फिर इसके बाद कूलिंग करते हैं। लास्ट में हम स्टोरेज करते हैं। थैंक यू।